السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان شبرز بشیر اور کشمیر نیوز وائر میں آپ کا استقبال. اور آج آپ جانتے ہو کہ روشن کشمیر کا پہلا مرحلہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آپ یہ بھی جان سکتے ہو کہ ہماری یہ دیکھ سکتے ہو ہماری ویب سائٹ پر .kashmirnewswire.com اور یوٹیوب چینل پر بھی آپ یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو. اور ہمارے پاس جو کہ ہم نے یہ پروگرام انعقاد کیا جس کا نام ہے روشن کشمیر. روشن کشمیر کا مقصد یہ ہے کہ ہم خبریں تو دیتے رہتے ہیں، چاہے آر کی ہے چاہے پار کی ہے، تو خبروں کے ساتھ ساتھ ہم تعلیم کا بھی شعبہ دیتے ہیں. اور ہمارے پاس اس وقت یعنی کہ جن نے اپنی کتاب یعنی پبلش کی ہے جس کا ٹیئر فل پیجز نام ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت عذرا مفتی ہے جن نے اپنی کتاب کو پبلش کیا ہے. اور دنیا بھر میں وہ اس وقت ہر جگہ ہر کسی بک سیل پر موجود ہے. آپ بھی وہ دیکھیے اور وہ بھی پڑھ لیں. اور تاہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ناظرین کہ روشن کشمیر کا مقصد ہے کہ اہم لوگوں تک وہ بات پہنچے جو آج کل کے اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں، ان تک یہ بات پہنچے کہ کیا ہمیں آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے اور اپنے ٹیلنٹ کو باہر کس طریقے سے نکالنا ہے. تو اب ہم اپنی جو ہماری مہمان ہے عذرا مفتی کے ساتھ بات کریں گے اور ان کے ساتھ کچھ سوالات کریں گے جو ہمیں دیے گئے ہیں. ان کے سوالوں کے ساتھ ساتھ اور ان کو پوچھا جائے گا کہ ٹیئر فل پیج اکثر آپ نے کس بل پر دیا ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت عذرا مفتی سے ہم بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تھینک یو سو مچ. کشمیر نیوز وائر کا میں تہہ دل سے شکریہ کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے یہ ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایسے پروگرامس ہونے چاہیے. تو تھینک یو کشمیر وائر ٹیم کا اور آپ کا. جی میم، آپ بتائیں جو آپ نے ٹیئر فل پیج اپنی بک ہے تو آپ پہلے اپنے اس کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن دیجیے. جی سر بالکل. ٹیئر فل پیجز بیسکلی میرا ایک میڈن ناول ہے، میڈن بک میں کہہ سکتی ہوں. بیسکلی ایک کلیکشن آف اسٹوریز ہے جہاں پہ میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ سوسائٹی میں جو بھی عورت ہے اس کے خلاف ڈفرینٹ ٹائپس آف کرائمز جو ہیں، تو کس ٹائپ کا کرائم جو ہے ہم دیکھیں گے. بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں کرائم کی. تو میرا بیسکلی کوشش تھی میری کہ میں دکھا سکوں کہ سوسائٹی میں ہم کہتے ہیں کہ ایمانسپیشن ہو رہی ہے، امپاورمنٹ ہو رہی ہے. میں یہ دکھانا چاہتی تھی کہ بیسکلی گراؤنڈ لیول پہ کیا سچویشن ہے اور کیسے کیسے کرائمز ہیں جو آج کل ایک عورت کو ایک 21st سینچری میں بھی ایک عورت فیس کر رہی ہے. جی آپ نے یہ جب کتاب میں جو لکھی ہے، آپ نے بکس لکھی ہے، تو آپ کو کتنے سال لگے اس کتاب میں؟ جی کوشش تو میں رائٹنگ میں آئی ہیو اسٹارٹیڈ رائٹنگ فرام یہ 2009 سے ہی میں رائٹنگ اسٹارٹ کی ہے میں نے. تو پرٹیکولرلی میرا یہ دماغ میں تھا کہ میں نے لکھنا ہے، کچھ لکھنا ہے. بٹ اسٹرائکنگ اٹ واز ان ایئر 2013 جب میں نے سوچا کہ میں عورتوں کے مسائل کے بارے میں لکھوں. تو میں نے مائنڈ میں ہی سیٹ اپ بنا لیا تھا، ان مائی سب کانشیس مائنڈ یہ سب کچھ تھا. پھر فائنلی اٹ ٹک می 8 months. تو 2015-16 کے اسٹارٹنگ میں نے لکھنا اسٹارٹ کیا. 8 or 9 months اٹ ٹک می ٹو رائٹ. اس میں گھر والوں کا سپورٹ ہے، ماں باپ کا سپورٹ، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وادی کشمیر میں اکثر ڈرگس میں ہمارے یہاں کے تو کیا کہنا چاہیے؟ جی بالکل. پیرنٹس کا سپورٹ تو ہر ایک لڑکی کا ہونا چاہیے. لڑکیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے گھر پہ، تو گھر والوں کا سپورٹ ہمیشہ رہا ہے. انہوں نے مجھے ایک بیٹی نہیں ایک بیٹا ہی دیا ہمیشہ. تو مائی فادر وہ خود ایک رائٹر ہے، وہ خود ایک جرنلسٹ رہ چکے ہیں. تو ان کا ہمیشہ سپورٹ رہ چکا ہے، میری ماما کا ہمیشہ سپورٹ رہ چکا ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی یوتھ آج کل ڈرگ ایڈکشن میں ہے، الکوہلزم میں ہے، بیسکلی یہ سب ایک چیک رکھنا چاہیے. دا پیرنٹس دے نیڈ ٹو کیپ اے ویجل. انہیں ایک چیک رکھنا چاہیے اپنے بچوں پہ کہ وہ کن ایکٹیویٹیز میں ہیں، ان کے فرینڈس کون ہیں، ان کی پیئرس کون ہیں. تو ان پہ ایک چیک رکھنا چاہیے. اور بالکل ایجوکیشن ہی ایک میں کہوں گی ایک پینیشیا فار آل دا کرائمز جو سوسائٹی میں ہو رہے ہیں. ایک اویئرنیس، ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور پیرنٹس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ ایک نظر رکھ سکے، رکھنے بھی چاہیے. اور بچوں کا بھی یہ بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو کے اپنی ایجوکیشن اور اپنے ٹیلنٹ اینڈ کریٹیوٹی پہ زیادہ دھیان دینے چاہیے. جو آپ جانتے ہو کہ پچھلے سال یہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے، یعنی کہ بچوں پر یعنی کہ کتابوں میں یعنی کہ وہ ایجوکیشن پر بہت ہی اثر پڑا، برا اثر پڑا. تو تاہم آپ نے 5 سال باہر گزارے ہیں اور یہاں پر جو آپ بات کرتے ہیں کہ کشمیر وادی میں آپ کشمیر وادی میں نہیں تو کیسا لگا آپ کو گھر کے بنا 5 سال باہر رہنا؟ آپ کو کیسا لگا؟ گھر سے دور رہنا تو ہمیشہ ایک بچے کے لیے، اور میں آئی واز جسٹ 19 ایٹ دیٹ ٹائم جب میں چنڈی گڑھ گئی اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے، تو گھر سے باہر رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. بٹ میں یہ کہوں گی کہ گھر سے باہر
बाहर रह के ही एक इंसान बहुत कुछ सीखता है, एक एक्सपोजर मिलता है, एक इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो एक बच्चे में बहुत सारी सलाहियतें जो होती हैं वो उसको खुद ही हैंडल करना पड़ता है। तो सो यू बिकम ऑल राउंडर, यू नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स, यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो एक लड़की जो है, हाँ, बाहर जाके उसको अपनी डिग्निटी का मेंटेन, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना है, क्योंकि बाहर फ्रीडम होती है, एक अल्टीमेट इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो अपने पेरेंट्स का, अपनी उस इंडिपेंडेंस का अच्छी तरह से यूज़ करके अपना जो जिस मकसद के लिए आप गए हैं उस मकसद को पूरा करके ही वापस आना है। जी, ये मेरा मैसेज। जी, यहाँ पर जो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ अगर आपकी किताब यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के पास पहुँची, कोई तो गलत निकालता है तो कोई सही मान लेता है, तो किस तरीके से अब उनको अपने दिमाग में इस किताब को अपने जहन में डालना है और किस तरीके से उनको ये मैसेज अपने आप में डालनी है कि हम किस तरीके से चलना है, किस तरीके से आगे आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, जब भी आप इस बुक का कोई भी एक स्टोरी उठा के पढ़ेंगे तो बेसिकली मैं ये चाहती हूँ कि हर एक इंसान अपने इमोशंस को जोड़ ले, हर एक स्टोरी के साथ अपने इमोशंस को जोड़ ले। स्टोरीज बहुत ही मतलब मैं कहूँगी हर एक जो लड़की है उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेस किया ही होता है। तो बेसिकली एक लड़की उस स्टोरी के साथ अपने आप को रिलेट कर सकेंगी। बॉयज़ जो है, जो मेल कम्युनिटी है, उनसे मैं यही कहूँगी कि अब इमोशंस तो आपकी जो बीवी है, आपकी जो बेटी है, आपकी जो बहन है, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्राइम्स क्यों होते हैं? जब हम एक लड़की को एक लड़की की शक्ल में देखते हैं, एक इज्जत उसे नहीं दे पाते। तो बेसिकली क्राइम्स तभी कम हो सकते हैं जब हम अपनी बहन को और दूसरी लड़की में कोई फ़र्क ना करें। तो यही एक चीज़ है जो बहुत ही इंसान को इंसान बना देती है। इंसान एक जानवर नहीं, एक जानवर जो हरकतें आजकल होती हैं, जो दहशत फैला हुआ है आजकल, तो बेसिकली वो इसीलिए क्योंकि हम दूसरों की इज्जत नहीं करते। तो बेसिकली बॉयज़ के लिए यही मैं चाहती हूँ कि वो ये बुक पढ़ के अपने माइंड में ये बिठा लें कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है, और लड़कियों को भी अपने आप की यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, नोबडी गिव्स यू पावर, यू हैव टू टेक इट। तो अपने आप की रिस्पेक्ट खुद करनी है और करवानी भी है। इज्जत सबकी होती है बट करवानी पड़ती है। तो आप ये बुक पढ़ें और आप देखें कि कैसे कैसे आपको अवेयर रहना चाहिए आपको। और मेल कम्युनिटी को ये कहूँगी कि कैसे आपको हर एक लड़की को एक इज्जत की नज़र से देखना। जी, अगर जो हम बात करेंगे पेरेंट्स की बात करेंगे तो अक्सर कहा जाता है कि जब गर्ल्स किसी काम पर आ जाती है या कोई उसका मकसद होता है तो कहते हैं कि पेरेंट्स के ये वहाँ पर मत जा, बाहर नहीं हम ले जाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन ताहम वो अपने आप को आगे बढ़ा लेती है। लेकिन जब उसका टैलेंट छुपा रहता है तो पेरेंट्स को इजाज़त नहीं देती है। तो क्या आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी जो ऐसी सलाहियत है जिसको एक बच्चा एक अरूज पर पहुँच सकता है, ऐसी जो सलाहियत है उनको आप दबा के ना रखें। जैसे आप तजम्मुल की बात करेंगे या आप राइटिंग की बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे, तो ऐसे ऐसे फील्ड्स जो हैं जिनमें एक बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो अपने बच्चों को दबा के ना रखें, उन्हें एनकरेज करें। हमारे कश्मीर में ये कंसेप्शन है कि 90%, 99%, 100% जो है उसी का बस उसने ही आगे चल के पता नहीं क्या झंडे गाड़ देने। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बच्चा है उसका राइटिंग में इंटरेस्ट है तो उसको उसके लिए एनकरेज करें। आपका बच्चा है उसको किसी और चीज़ में, पोइट्री में इंटरेस्ट है तो उसको उसमें एनकरेज करें। उसके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसमें एनकरेज करें। आप स्टडीज़ को ही ज़्यादा ये मत करें कि अगर आपके 90% से कम है तो आपको खाना नहीं मिलेगा, आपकी एजुकेशन पे हमने इतना किया। तो बेसिकली दीज थिंग्स जो बच्चे को डिस्करेज करती हैं उसको नहीं आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है। जिस चीज़ से एक आपका बच्चा एनकरेज होता है तो उस चीज़ को ही आप ज़्यादा ध्यान में रखें। और मैंने एक चीज़ देखी है कश्मीर में, हम कंपैरिजन बहुत करते हैं, उसका बच्चा फलाना बच्चा, ये बच्चा आपसे अच्छा है। तो प्लीज़ कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ हैप्पीनेस। आप अपने बच्चों को किसी और के साथ कंपेयर ना करें और जो सलाहियतें आपके बच्चे में हैं उसको और ज़्यादा हार्नेस करें ताकि वो अपने मकाम पर पहुँच सके और मुझ पर पहुँच सके। जी मैम, जो कहा जाता है कि वादी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, अक्सर जब आप 5 साल के बाहर यानी कि घर से बाहर हो गई तो कहा जाता है कि अगर हम किसी लड़की को या लड़के को बाहर भेजें, शायद वहाँ पर कुछ नुकसान हो, शायद उन पर किसी का दबाव हो या वहाँ पर कुछ लड़ाई करेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे वादी कश्मीर से बाहर ऐसा हो सकता है? जी देखिए, ये सब कुछ अपने परसेप्शन पे डिपेंडेंट है। जो कश्मीर के बाहर हो सकता है वो कश्मीर में भी हो सकता है, क्योंकि इंसान की बेसिकली तरबियत और जो उसकी फिक्र है, जो उसका डिसिप्लिन है और अपब्रिंगिंग रह चुका है बचपन से, वो डिटरमाइन करता
होता है आपका कैरेक्टर क्या है, आपका बिहेवियर क्या है। तो मैं यही कहूँगी कि एक इंसान को अपना दिमाग लगा के हर एक सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि घर से बाहर रह के आप जो है तो मतलब ज़्यादा खतरा रहता है, घर के अंदर और कश्मीर में रह के भी आप वही कुछ कर सकते हैं जो आप घर के बाहर कर सकते हैं। तो यही है कि बाहर का ये कंसेप्ट है, हाँ थोड़ी सी आपको ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। वहाँ पे माँ बाप का प्यार नहीं होता, वहाँ पे रिलेटिव्स की आप पे नज़र नहीं होती, आपके घर वालों का प्यार नहीं होता, तो आपको जो कुछ करना होता है खुद ही हैंडल करना होता है। तो वो एक चीज़ है जो बाकी आपका जो मेंटल परसेप्शन है, आप लाइफ को कैसे लेते हैं, आपका जो गोल है, आपका जो मकसद है, अगर आपने वो ध्यान में रखा है तो नथिंग कैन स्टॉप यू। सो यू विल बी जो अचीव। आपने किताब लिखी है टेयर टू पेज है, कि ये आपने कब से कि आपको क्या महसूस हुआ अंदर से कि मैं किस बारे में और क्या क्या चाहे आपको घर में मॉम का सपोर्ट हो चाहे फादर का सपोर्ट है, क्या किस तरीके से आपने लिखा और इसमें किसका साथ है ज़्यादा? जी मैं जब से होश संभाला है, मैं तो कहूँगी 12th के बाद ही मैंने अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, अपनी डायनास्टी में, अपने रीजन में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, तो जहाँ पे मैं औरतों की आंखों में हमेशा आंसू देखती थी, तो वो उस चीज़ ने मुझे बेसिकली ट्रिगर किया कि ऐसा क्यों होता है कि औरत को हमेशा रोना क्यों पड़ता है, ऐसा क्यों होता है सोसाइटी में एक औरत को बोझ क्यों माना जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये था कि आजकल हमारी सोसाइटी में औरत को वो इज्जत, वो मकाम नहीं दिया जाता जो उसको मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था। उसके बाद जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, मेरी फैमिली ने, मेरी सिस्टर्स ने मशवरा दिया कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखो क्योंकि आप एक औरत है और मैं समझ सकती हूँ। बीइंग अ वुमन आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अ गर्ल, द पेन ऑफ अ वुमन। तो मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं अपनी राइटिंग्स को इसी लाइन में चैनलाइज कर सकूँ, क्योंकि मैंने जो भी लिखा है दिल से लिखा है, कलम का काम कम, इसमें मेरे दिल और मेरे जो आंसू बहे हैं वो मैं फील कर चुकी हूँ। तो जो भी लिखा है बहुत ही दिल से लिखा है और चाहती हूँ कि होप्स हो कि लोगों को भी वो पसंद आएगी। जो जैसे हमने कल परसों आपकी मैसेज यहाँ पर सोशल मीडिया में डाल दी तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ गए हमारे बॉयज़ की तरफ से, लड़कियों की तरफ से भी, और वो कह रहे थे कि हमें ये बुक्स कहाँ से मिली। अक्सर आप बता दीजिए मुझे ये बुक्स। जी मेरा एक पेज है अजरा मुफ्ती फ्रीलांस कॉलमिस्ट के नाम से, जो कि फेसबुक पे है। तो वहाँ पे मैंने सारे लिंक्स डाल दिए। आपको किंडल पे मिलेगा, आपको ईबे पे मिलेगा, आपको अमेजोन पे मिलेगा। आप एक सिंपल एसएमएस कर सकते हैं पब्लिशर को, तो आपकी जो है आपकी बुक डिलीवर हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे आपके पास ऑप्शंस हैं, वीगी पब्लिकेशन जिन्होंने मेरी बुक पब्लिश की है। तो ऐसे आप मेरा पेज चेक करें, आपको पूरा मिल जाएगा कि कहाँ से आपको बुक मिलेगी, और विद इन 10 और 5 डेज आपको बुक डिलीवर हो जाएगी। जी अब इख्तिताम में आप पहुँचेंगे तो आखिरी मैसेज जो आपकी होगी, यानी कि हमारे वादी कश्मीर के, खास करके हम वादी कश्मीर की बात करेंगे। वादी कश्मीर में अक्सर गर्ल्स और बॉयज़ और नौजवान की अगर बात करें तो उनके तक आपकी मैसेज इस वक्त पहुँचनी चाहिए, और आप क्या मैसेज देंगे, लास्ट मैसेज आप क्या देंगे? जी मेरा मैसेज यही होगा कि इस टाइम जो है आपका सारा फोकस आपके करियर पे होना चाहिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इट्स अ कट थ्रू कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड आउट देयर। तो आप अपनी टैलेंट्स जो है, अपनी क्रिएटिविटी को, अगर आप में कोई टैलेंट है तो प्लीज़ उसको अच्छे वे में चैनलाइज करें। आपका जो दिल करता है, आप किसी का मशवरा लेके कुछ ना करिए, जो आपका दिल कहता है करने का। इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर, बी अ राइटर। इफ़ यू वांट टू बी अ पोइट, बी अ पोइट। इफ़ यू वांट टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, बी दैट। आप ये ना सोचें कि आप पे कोई दबाव है, और अपने आप को ऐसे हार्नेस करें, अपने आप को ऐसे ग्रूम करें कि कल को आप जब बाहर निकलते हैं तो आप हर एक सिचुएशन को, टफ सिचुएशन को फेस कर सकें। और लेडीज़ को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी इज्जत का, अपनी डिग्निटी का ख्याल रखें, मेंटेन करें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। और बॉयज़ को ये कहूँगी कि लड़कियों की इज्जत करें। हर एक लड़की जो है वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, तो उनकी रिस्पेक्ट करें। इससे सोसाइटी में प्यार बढ़ेगा और जो क्राइम्स है ऑटोमेटिकली दे विल कम टू एन एंड। शुक्रिया अजरा मुफ्ती, आप यहाँ पर आए, आपका शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे साथ अजरा मुफ्ती बात कर रही थी, जो कि टेयर टू पेज उनकी किताब है, उनकी तरफ से उनका जो इंट्रोडक्शन दिया उनसे लिया, और क्या कहा इन्होंने आपको भी सुनाते हैं। लेकिन नाज़रीन आपको ये भी बताते चले, बहुत सारे ऐसे ही, चाहे बॉयज़ है चाहे गर्ल्स है, खास करके अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे, वो यानी कि वो अभी भी या ऐसी टैलेंट को आगे बढ़ाने, जिसके पास भी टैलेंट है, जिसके पास भी अपने टैलेंट को बहाने, चाहे पढ़ाई में टैलेंट है किसी को, चाहे किसी को किक बॉक्सिंग में
टैलेंट है या किसी और में अपने टैलेंट को बाहर निकाले और ख़ास करके अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे और अपने माँ बाप की और अपने यानी कि अपने भाई बहन है या जो आपको बताया जाता है कि अक्सर आपकी बहन होती है, लेकिन जो यहाँ के यानी कि इर्द गिर्द चाहे जो आपकी बहन नहीं है उसको भी अपना बहन समझे, क्योंकि जैसी आपकी बहन है वैसे दूसरी भी आपकी बहन है। यही आपको हमें मकसद है कि रोशनी कश्मीर में हर लम्हा हर सफ़र आपको यही पता चले कि खासकर न्यूज़ ही नहीं सही है बल्कि इस एजुकेशन पर भी फोकस करना भी ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं हम और दूसरे मरहले की तरफ, और आपको इसी वक्त अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो मिलते हैं फिर रोशनी कश्मीर में, और मैं आपका मेज़बान शबीज़ बशीर, श्रीनगर।